میرے عزیزو، خداوند کے زندہ قدوس جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر ایکسٹر نوین رضا ہے جی، اور میں جیزس ٹو دا ورلڈ منسٹری کا چیئرمین ہوں۔ اور میں آج بڑا شکر گزار ہوں پاسٹر رفاقت صاحب کا، انہوں نے اپنے چینل پہ مجھے دعوت دی، اور بڑی خوشی کی بات میرے لیے، آنر کی بات یہ ہے کہ پاسٹر رفاقت جو ہیں جیزس ٹو دا ورلڈ منسٹری کے پلیٹ فارم کو لے کر یہاں یوحنا آباد ڈی بلاک میں بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ ان کی اس محنت اور ان کی جو لگن ہے یسوع کے ساتھ، اس کو بڑے اچھے طریقے سے یہ نبھا رہے ہیں، اور دور و نزدیک جہاں کہیں خدا انہیں لے جاتا ہے یہ خدا ان کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ ان ساری برکتوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں خدا کے، کہ خدا نے جو انہیں دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم ایک کلام کو جو شیئر کریں گے وہ متی کی کتاب میں 13 باب سے ہے، اور اس کلام کو شیئر کرنے سے پہلے ہم چھوٹی سی دعا کریں گے خدا کے پاک کلام کے لیے۔ میرے عزیزو، آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، تمام سننے والوں کو، ہم سب آئے خداوند خدا، اور دیکھنے والوں کو آئے خداوند خدا تیرے نام سے، آئے خدا پاک روح زندہ جلالی باپ شکر گزاری کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو برکت دے، آج سننے والے برکت پائیں، تیرے کلام کے ذریعے سے جوئے اور بندھن ٹوٹ جائیں، اور خداوند تیرا نام ہماری زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ خداوند زندہ جلالی باپ، یرمیہ ایک نبی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کلام میرے اندر تمہار کی مانند اتر جائے، اور جب یہ بیان ہو تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو۔ آئے خداوند، آج تیرا یہ کلام جب پڑھا جائے، جب اس کی ڈیفینیشن بیان کی جائے، تو سننے والے تجھ سے برکت پائیں، اور خداوند تیرے نام کو جلال دیں، آمین۔ میرے عزیزو، آج خدا کے پاک کلام میں سے متی کی کتاب اس کا 13 باب میں سے چند ایک ورسز، چند ایک جگہوں سے میں پڑھوں گا پورے چیپٹر میں سے۔ تو اس میں متی 13 باب میں سے لکھا ہوا ہے کہ اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی، یعنی یسوع کے پاس، کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا، اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو تمثیلوں کا بیان ہے، خداوند یسوع مسیح نے بھید کی باتیں کی ہیں، تمثیلوں میں باتیں کی ہیں، اور بائبل مقدس بیان بتاتی ہے کہ جن کے کان ہو وہ سنیں، ٹھیک ہے جی، اور جو حکمت رکھتے ہوں گے وہ روح کے وسیلہ سے ان تمثیلوں کی باتوں کو ضرور سمجھیں گے۔ تو آج کا جو کلام ہے یہ بیج بونے والے کی جو مثال خداوند یسوع مسیح نے اس میں دی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور دیکھو، ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر چن لیا۔ نمبر 1 جو ہے جی، راہ کے کنارے گرنے والے، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے۔ اور کچھ جھاڑیوں میں گرے، اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین پر گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ میرے عزیزو، یہاں پر 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ بیسیکلی یہ کلیسیا کے لیے ہے کہ ایک، اگر ہم تھوڑا سا اس کو گہرائی میں دیکھیں تو ایک کھیت ہے، جہاں پر کھیت دنیا کی بھی مثال ہے، اور سمندر کو بھی اسی طرح سے دنیا کی مثال کہا گیا ہے، کہ کھیت جو ہے، کھیت میں جب کسان بیج بوتا ہے تو وہ جب دانے پھینک رہا ہوتا ہے تو کچھ جو دانے ہیں جو جن سے فصل نکلنی ہے، وہ کچھ راہ کے کنارے گر جاتے ہیں، کچھ پتھریلی زمین پر گر جاتے ہیں، اور کچھ جھاڑیوں میں، لیکن کچھ زرخیز زمین پر بھی گرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کی ڈیفینیشن بھی ہم اسی حوالہ میں پڑھتے ہیں، اسی کلام میں پڑھتے ہیں 13 باب میں ہی۔ اگر آپ 13 باب کی 18 آیت میں سے دیکھیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، پس بونے والی کی مثال، یہ یسوع ہی اس کی آگے ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں
तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे गिर गए, शरीर आकर छीन लेता। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, ठीक है जी। और जो पथरीली जमीन पर बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फील फूल खुशी से कबूल कर लेता है, ठीक है जी, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, आमीन, बल्कि चंद रोजा और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फील फूल ठोकर खाता है। और जो तीसरी तरह का जी यहां पर वो है जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फ्रेम उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जब जो अच्छी जमीन पर बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता, समझता और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना और कुछ इससे भी ज्यादा। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ये बीज बोने वाले की मिसाल का जो जिक्र है, हम दुनिया में रहते हुए इसी तरह से, दुनिया को एक खेत की तशबीह आप दे लें कि दुनिया में ऐसे ही 4 तरह के लोग हैं जो अपने आप को खुदा की तरफ तो तेजी से लेकर आते हैं, लेकिन शरीर जो है, जो शरारत से बाज नहीं आता, वो उनके कलाम को दबा देता है। क्योंकि वो राह में चलते हुए, जैसे कोई चर्च में बैठा तो वो चर्च में है, लेकिन राह में दुनिया की फिक्रें हैं, सोचे ख्यालात हैं, और वो कलाम उसके अंदर चंद दिन के लिए, और वो कलाम जो उसने सुना है चंद दिन के बाद उसके ज़हन सोच ख्याल से निकल जाता है। मेरे अजीजों, यहां पर जो 3 तरह के लोग हैं हमारे दरमियान, हमारी दुनिया में आज ऐसा ही है। अगर हम खुदा के लोग हैं तो बड़ी अच्छी आगे तमसील है कि जो इसकी मजीद आपको समझ देगा वो ये है कि अगर आप 13 बाब की 24 आयत मेरे साथ निकालिए तो उसमें लिखा है, उसने एक और तमसील उनके सामने रखी और कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। अब जो 3 तरह के लोगों की डेफिनेशन हमने सीखी, जो हमने अभी उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या हुआ कि एक खेत जो दुनिया है, दुनिया में रहते हुए क्या होता है कि शैतान आकर अच्छी जिंदगी चल रही होती है, अच्छी भली लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन एक वक्त जब मुसीबत आती है तो मुसीबत में अबलीस जो है अब आपके क्या कर रहा है, जिंदगी में कड़वे दाने बोने शुरू कर दिए। उसने आपको मुख्तलिफ तरह से उस मुसीबत से निकलने के लिए मुख्तलिफ तरह के बुराई के रास्ते नजर आने लग पड़ते हैं, और आप अगर रास्तबाजी को छोड़कर उन अबलीस के रास्तों पर चल देते हैं तो फिर क्या हुआ, कड़वे दाने का हिस्सा बन गया। मगर लोगों के सोते में क्या हुआ, दुश्मन आया और गेहूं में, अच्छे बीजों में अब क्या हुआ, जो कलाम आपके अंदर था उस कलाम में अब मिलावट हो गई। आपने खुदा को भी अजीज रखना शुरू कर दिया, चर्च जाना नहीं छड़िया, लेकिन अब आप दुनिया के कामों को ज्यादा तरजीह देने लग पड़े हैं, ठीक है। अपने फायदे के लिए जो चीज अच्छी लगती है वो आप कर लेते हैं और फिर खुदा खुदा करते रहते हैं। यही चीजें कड़वे दाने हैं, यही चीजें लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं, और फिर वो कड़वाहट कैसे जाहिर होती है हमारी जिंदगी से, वो कड़वाहट जाहिर होती है बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से, रेंट्स नहीं दिए जा रहे, बिल्स नहीं अदा हो रहे, ये सारी चीजें कड़वाहट का सबब बन जाती हैं। क्यों? अब हमने मिलावट शुरू कर दी। जैसे दुनिया में आज मिलावट है, अगर हम अपनी लाइफ में मिलावट को दूर कर देंगे मेरे अजीजों, तो जो गेहूं का असल दाना है अगर वैसे बन जाएंगे तो गेहूं को क्या किया जाता है ये हम आगे चल के देखेंगे। बस जब पत्तियां निकली और बालियां आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा,
फकी फरीसियों ने, दुश्मन ने, खुदाम यीशु मसीह की तालीम में जब फकी फरीसी शामिल हो गए तो ये किसी दुश्मन का काम है। फकी फरीसी यीशु की तालीम से मुनहरिफ थे, उस तालीम को नहीं थे मानते, खुदाम यीशु मसीह के आने को नहीं थे पहचानते। वो कौन था जिसके लिए इतनी पेशन गोइयां यशायाह नबी से लेकर और उससे पीछे भी अगर मूसा नबी के दौर में भी चले जाएं तो उस वक्त भी पेशन गोइयां, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दरमियान से एक नबी बर्पा होगा, तुम्हारे भाइयों के दरमियान से। ये मूसा से बात हो रही है, ठीक है जी। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम पैदाइश की किताब में भी देखें तो अबलीस को कुचलने वाला औरत की नस्ल से पैदा होगा। हालेलुया। तो अब क्या हुआ, तो उसने मालिक ने कहा मैंने तो नहीं किया, लेकिन ये कड़वे दाने जो हैं वो कहां से आ गए? घर के मालिक ने कहा ऐ खुदावंद क्या तूने अपने, अब मालिक नौकर जो है वो मालिक से पूछ रहे हैं, ठीक है। उसने कहा नहीं, उसने कहा मैं कड़वे दाने कहां से, फिर इसमें कड़वे दाने नौकर कह रहे कहां से आ गए? उसने उनसे कहा ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? वो कड़वे दाने कह रहा है जमा करें। उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने भी जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा भरने दो और कटाई के वक्त में मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध दो और गेहूं मेरे खत्ते में डाल दो। यीशु मसीह नासरी ने यहां पर जो बात की, गेहूं मेरे खत्ते में डाल दो। अब गेहूं खत्ते में कब आएगा? जो अच्छे दाने हैं वो गेहूं, अच्छा दाना जो है, हम अक्सर गांव विलेजेस में जाते हैं तो वो भड़ोले से बनाए होते हैं जिसमें अच्छे दाने जमा किए होते हैं, लेकिन जो कड़वे होते हैं वो जलाने के लिए उसी जगह पर खेत पर गट्ठे बनाकर छोड़ दिए जाते हैं कि ये जलाने के लिए काम आएंगे। आगे चल के की जो मजीद डेफिनेशन है वो कटाई का वक्त कौन सा है। उसने जवाब में उनसे कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है और खेत दुनिया है। अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो अबलीस है और कटाई दुनिया का आखिर और काटने वाले हालेलुया फरिश्ते हैं। फरिश्ते क्यों काटेंगे? इंसान इस कदर क्यों नहीं खुदा के साथ ईमानदार हुआ? फरिश्ते तरफदारी नहीं करेंगे। हालेलुया, फरिश्ते तरफदारी नहीं करेंगे। इसीलिए ये काम खुदा ने कटाई का भी अपने स्पुर्द रखा। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में अगर इसके आखिरी वर्ष में से जाने से पहले एक आयत पढ़ना चाहूंगा। और जो कड़वे दाने उनके साथ क्या होगा? फरिश्ते ही काटेंगे, फरिश्ते इंसाफ करेंगे। और क्या होगा? पर जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं, आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुने। बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में है, जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? रूह क्या फरमाता है जी? रूह फरमाता है कि जो गालिब आएगा, हालेलुया, जो गालिब आएगा। मुकाशवा की किताब के हर एक पहलू में आप देखें कि जो गालिब आएगा। मेरे अजीजों, हमें दुनिया की बातों से उस वक्त तरक्की मिलेगी जब हम इन बुराई के कामों पर गालिब आ जाएंगे और फिर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। यीशु के खत्ते में जब जमा हो जाएंगे, जब यीशु के खत्ते में जमा हो जाएंगे तो फिर बादशाही के फर्जंद बन जाएंगे और फिर वहां पर ना रोना है, ना दांत पीसना है, ना वहां कोई बीमारी है। और इसी से हम जाने जाएंगे कि हम रास्तबाज लोग हैं। आमीन। खुदावंद आप सब सुनने वालों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हम छोटी सी दुआ करेंगे। मेरे अजीजों, आए खुदावंद अजीम कादर मतलब खुदा, आज का तेरा ये कलाम जो तेरे खादम ने आए खुदावंद खुदा जिंदा जलाली बाप लोगों तक पहुंचाया है, इस कलाम के जरिए से बहुत तेरे सुनने वाले
बहुत तेरे समझने वाले आज तुझसे बरकत और बहाली पाएं। खुदावंद इनकी जिंदगियों में भी खुदावंद खुदा तू खत्ते सा काम कर कि ये तेरे खत्ते में जमा हो जाएं और अपने गुनाहों से तौबा करें और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। खुदा पाकरू तमाम सुनने वाले देखने वाले आज मसीह यस्सु के कादर नाम से बरकत और बहाली पाएं और खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें और अपने गुनाहों का इकरार करके हमेशा तुझ में रहे, मसीह के नाम से आमीन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो इस कलाम के हवाला से, इस जो आज मत्ती 13 बाब में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मत्ती के पूरे 13 बाब में से हमने ये हवाले लिए। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही होगी तो आप ज़रूर पास्टर रफाकत से रब्ता कर सकते हैं। हम उन बातों को ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के ज़रिए से टेलीफोनिक मतलब नीचे नंबर भी चल रहे होते हैं आपके फेसबुक पे। जब इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपके जहन में कोई बात हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत कर दे, मसीह के नाम से आमीन।